الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نئے مسائل، علاج کے نئے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے، اعضاء کی نقل اور اس کی پیوند کاری ہے، یا اسی طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہے، فیملی پلاننگ ہے، کانڈوم کا استعمال ہے، اور اسی طریقے سے ذہنی طور پر حس کا مر جانا، انسان کے اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں موت الدماغ، کہ دماغ مر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ حرکت قلب جاری ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، پہلے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میں استاد سید عقیل احمد بات کر رہا ہوں، لاتو ضلع ادکیر سے۔ جی عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے مظہر بھائی؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں۔ مدنی صاحب کو بھی میرا سلام پیش کیجیے۔ کافی خوشی ہوتی ہے، آپ کے کال ہمیں آتے رہتے ہیں۔ جی جی سوال بتائیے، کیا سوال ہے عقیل صاحب آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے مدنی صاحب سے، آج کل کچھ لوگ بغیر سرجری کے بھی کینسر وغیرہ کا علاج کر دیتے ہیں، جی اور اس علاج کا ایڈورٹائزنگ وغیرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ میڈیکل فیلڈ کو بھول کر ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو کینسر کے اور ڈائبٹیز کے ایسے بھی علاج موجود ہیں کیا اسلام میں؟ کوئی آیت وغیرہ سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، یا جو ہے نا ایسے لوگ جو بغیر سرجری کے بھی جو ہے نا کینسر اور ٹیومر کو نکال لیتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ آج کل جو ہے نا ہماری خواتین میں بڑا رجحان پایا جا رہا ہے کہ لوگ میڈیکل سائنس کو بھول چکے ہیں اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایسی بھٹکی ہوئی خواتین کو بھی جو ہے نا ایک راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، اور ایسے علاج کیا ممکن ہے یہ بھی ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ بہت بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دعاؤں کی درخواست۔ جی آپ سے بھی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ مدنی صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے آج کل کینسر وغیرہ کے تعلق سے، جو بنا میڈیکل سائنس کے جو علاج ہو پا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، لوگ ایک طرح سے گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اسلامی احکام کے مطابق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے۔ بھائی نے یہ سوال کیا ہے، یعنی بھائی کے سوال کے اندر کچھ پہلو ہیں اور کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو اسباب ہیں یا میڈیکل سائنس ہے، جدید سائنس، اس کو چھوڑتے ہوئے بغیر سرجری، بغیر آپریشن کے ایک معنی میں شعبہ بازی یا جادوگری کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ بتایا جائے کہ کہاں تک صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ اسلامی اعتبار سے کچھ نسخہ جس کو ہم کہتے ہیں طب نبوی، کیا اسلامی اعتبار سے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ علاج ہے جو کینسر وغیرہ کے لیے یا جو جدید بیماریاں آ رہی ہیں؟ یہ دو پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلا پہلو آپ نے بتایا، ایک مسلمان کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے تھم رول یا ایک بیسک لائن جس کو آپ کہتے ہیں، مسلمان اور پوری انسانیت کے لیے ایک ذہن میں بات ہم کو بٹھا لینا چاہیے، جہاں کہیں فائدہ نظر آئے ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اصل کرائٹیریا ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جو بھی چیز قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہو یا اس سے نہ ٹکرائے علاج کے بارے میں خاص طور سے، تو ایسے وقت پر ہم وہ سارے علاج کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی علاج قرآن مجید یا صحیح احادیث طیبہ سے ٹکرا جاتے ہیں، تو جیسے کہ کوئی جادو سے علاج کروا رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی شرک کا راستہ اپنا رہا ہے، تو ایسے سارے علاج سے ایک مسلمان کو اور پورے انسانوں کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ تو جہاں تک آپ کا پہلا سوال کا پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شعبہ دبادی یا جادوگری کے ذریعے سے کہیں پر بھی آپ کو کتنا بھی فائدہ نظر آئے، آپ ہرگز مت جائیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جس نے بھی کسی بھی نجومی یا کسی بھی جادوگر کے پاس ایک آدمی اگر گیا اور صرف دلچسپی لیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے اس پر بلیو بھی کر لیا، جانے کے بعد عقیدہ بھی رکھ لیا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرا پہلو ہے کہ کینسر، اسی طریقے سے میں اضافہ کرتا ہوں ایڈس، اور اسی طریقے سے تلی اور کلیجی کی بیماری، اس بارے میں آپ تعجب کریں گے الحمدللہ کہ امریکہ کی میگزین جو ٹائمز میگزین کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ کے اخبارات کے اندر اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پینے کے لیے بعض اوقات آپ نے کہا تھا جن کو پیٹ کی بیماری ہو چکی تھی، کہا کہ اونٹنی کا دودھ آپ پیئیں، اور آج جدید تحقیقات
ये हमें बतलाते, अगर आप विकिपीडिया भी पढ़ेंगे, इसी तरह इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे, तो ऊँटनी खासतौर से जो अरब की ऊँटनी है, सऊदी अरब की, उस ऊँटनी के दूध में इतना फायदा है कि एड्स की बीमारी का इलाज उसके अंदर है, कैंसर की बीमारी का इलाज उसके अंदर है, तिल्ली और कलेजे के से होने वाले बीमारियों के भी उसके अंदर इलाज मौजूद है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मेरा ये सवाल है जी कि हमारे इस्लाम में टेस्ट बेबी जायज़ है? अच्छा जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नारायणपेट से बोल रही हूँ। अच्छा जी, और कोई सवाल? जी नहीं, ये पूछना था। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी से मुताल्लिक क्या नजरिया पाया जाता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बहन ने सवाल किया है, ये भी जदीद मसाइल, इलाज के नए मसाइल हैं। वैसे बेसिकली बुनियादी तौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी से मुताल्लिक 8 किस्म की शक्लें हमारे सामने आती हैं। कभी हम इंशाल्लाह इस पर टॉपिक लेकर मुस्तकिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसमें से जो 2 जायज़ शक्लें हैं, 6 उसमें से नाजायज़ या इख्तिलाफी मसाइल में है, उसमें से जो 2 जायज़ है जिसको सारे उलमाए किराम ने एग्री किया है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी से मुताल्लिक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो 2 जायज़ शक्लें मैं आपको बताता हूँ और हमारे लिए फायदामंद चीज मालूम हो जाए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। कि 2 शक्लें ये है, एक तो शक्ल ये है कि बाद औक़ात होता ये है कि खातून में कोई कमजोरी होती है कि नतीजे में मनी जो यूटेराइन वॉल होती है, रहमे मादर के अंदर जो दीवार होती है, कि जिस दीवार से जाकर जिस दीवार से जाकर मनी और इसी तरह अंडा मिलने के बाद जो चिपक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने के बाद अलाका मुज़गा इस तरीके से जो मरहले तय पाते हैं, तो रहमे मादर की जो दीवार यूटेराइन वाल है वहां पर पहुंच नहीं पाता। नतीजे में यह होता है कि डॉक्टर उसको इंजेक्ट करते हैं, जदीद आलात के जरिए से, इंजेक्शन के जरिए से उसको इंजेक्ट किया जाता है, मनी को पहुंचाने में मदद देते हैं। तो इसके अंदर यह है कि डॉक्टर भरोसामंद हो और मनी जो शौहर की है बीवी तक पहुंचाई जा रही है, उसमें किसी भी तरह की शौहर के अलावा किसी और की मनी या कोई और चीज मिलावट ना की जाए। सिर्फ यह है कि शौहर की मनी औरत के रहमे मादर में पहुंचाई जा रही है, जिसको कहते हैं इंजेक्ट करना, तो ये जायज है। दूसरी शक्ल यह है कि औरत के मनी में से अंडा निकाला जाता है, अंडे, और इसी तरीके से मर्द की मनी ली जाती है और एक टेस्ट ट्यूब में वहां पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, और जब ये दोनों को मिलाया जाता है और एक मरहला गुजरता है तो उसका फिर वापस रहमे मादर में लौटा जाता है, क्योंकि बाद वक्त रहमे मादर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो शुरू के अय्याम में उसको बर्दाश्त कर सके, फिर उसको वापस लौटाया जाता है। तो यहाँ पर भी कोई नया काम नहीं हो रहा है, शौहर ही की मनी और बीवी ही का नुत्फा इसका अंडा लेकर ही गोया कि उसके अंदर जदीद वसाइल के जरिए से मदद की जा रही है। ये 2 शक्लों में कोई चीज मिलावट भी नहीं हो रही है और इसके अंदर डॉक्टर भी भरोसामंद है। ये 2 शक्लें जायज है। इसके अलावा जैसा कि आमतौर पे नौजुबिल्लाह एक बीवी का अंडा और इसी तरह नुत्फा लेकर दूसरी बीवी को या इसी तरह किराए की औरत का या किसी और के रहमे मादर में जो नाजायज शक्लें बनती हैं, बाकी की 6 वो नाजायज शक्लों में आती है। 2 जो जायज शक्लें मैंने आपके सामने बतला दी हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आपके SMS का भी हमें इंतजार है, इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और जो आलमी नाजरीन हैं वो हमें 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं मदनी साहब से, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम। मेरा हेलो सवाल ये था भाई साहब जी, मेरा सवाल ये है कि पामी स्टिक्स के बारे में जी, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? आप कहाँ से और कौन बोल रहे हैं भाई? मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ। बिजनौर से मोहम्मद आसिफ साहब जी। एक सवाल और था जी, ये नॉन वेजिटेरियन के बारे में और नॉन वेजिटेरियन के बारे में बताइए। लोग कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग, उसके बारे में पूछने से। एक तो सवाल है आपका पामिस्ट्री से मुताल्लिक, और जी दूसरा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से है। क्या है सवाल? का सवाल ये है कि हमें गोश्त वगैरह जो खाते हैं उसके जो फायदे हैं, और जी। लोग कहते हैं कि अब साइंस प्रूव कर रहा है कि नहीं ये गलत है, जी जी, तो उसके बारे में। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया। मदनी साहब, इल्म नुजूम पामिस्ट्री से मुताल्लिक भाई ने सवाल किया है, और वेज नॉन वेज से मुताल्लिक जो अहकाम मिलते हैं इस पर रोशनी डालिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवालात किए हैं कि लोग इलाज के लिए ये भी समझते हैं कि नए इलाज में यही है कि इसको डेवलप किया जाए, जैसे हाथ की लकीरों को देखकर या खासतौर से इल्म नुजूम तारों को देखकर, या बहुत सारी शक्लें हैं जैसे कि तोते से फाल निकालना, इसी तरह पासों के जरिए से मालूमात करना, तकदीर मालूम करने की कोशिश करना, या मेन जो सवाल ये है कि तारों के जरिए से इस बारे में इस्लामी नजरिया क्या पाया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 और 91 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु
वल-अंसाबु वल-अज़लामु रिस्सुम मिन अमल शैतान, कि इस आयत में बताया गया कि पासों के जरिए तकदीर मालूम करना, और जिसकी तशरीह अहादीस तय्यबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अंदाज में की है। मन अता अर्राफन, कोई ऐसा आदमी के पास जाए जो आपको तकदीर के बारे में दावा करता है या आपके फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में बताने की कोशिश करता है, और काहिनन, या किसी नुजूमी के पास जाते हैं, जादूगर के पास, अगर आप सिर्फ दिलचस्पी लेने जाते हैं, जैसा कि लोग मैजिक देखते हैं आज और सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं, 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। और एक आदमी अकीदा भी बना ले, बिलीव भी बना ले, तब तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है और सही मुस्लिम के अंदर भी, किताब उत-तिब के अंदर आपको ये अहादीस मिल जाएंगी। और जहां तक आपने सवालात किए हैं कि नुजूमी से मुतालिक, तो इस पर इंशाल्लाह और भी आपकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, और आपके सवालात पर जो आपने दूसरा पहलू बताया है उस पर भी इंशाल्लाह हम मालूमात आपको देंगे। नाज़रीन, और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम जी मोहतरम, आपकी आवाज बराबर आ रही है। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं? जी हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी शरद साहब, कैसे हैं आप? उसके लिए क्या इलाज है? हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ब्लड में, तो उसके लिए क्या इलाज है? क्या पड़ता है? हेलो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ब्लड में, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हार्ट में। हाँ जी, तो क्या सवाल, इसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? उसके लिए इलाज क्या है अपने पास? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शरद साहब, आप बॉम्बे से कॉल कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने और घटने की का किसी किस्म का कोई इलाज आप तफसील फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर जो इलाज बताने वाले होते हैं, उलमा इकराम जो शरीयत के मसाइल बताने वाले होते हैं, और इसी तरह इंजीनियर्स होते हैं जो आपको कई मसाइल बताते हैं। इस्लाम डिपार्टमेंटलाइज का कायल है, तो हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो लिहाजा आप डॉक्टर से बेहतरीन मशवरा ले सकते हैं इस मसले में। जहां तक ये कि आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि कुरान मजीद में सारे बीमारियों का इलाज है, इसका कोई दावा नहीं। अलबत्ता यह है कि कुरान और सही अहादीस हर चीज की रहनुमाई करते हैं। जो भी दुनिया में मसाइल आएंगे उसमें रहनुमाई की जाती है, क्या उसमें आपको इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है। ये पहले अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए कि कुरान मजीद और सही अहादीस तय्यबा ये कोई साइंस की किताब नहीं है कि जिसके अंदर आप ये ढूंढें कि सारी चीजें इसमें आपको कैसे मिलेंगी। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदावो या इबादल्लाह, कि तुम दवाई का इस्तेमाल करो, चाहे मुस्लिम उसको दरियाफ्त करे चाहे गैर मुस्लिम उसको दरियाफ्त करे, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खूबी है इस्लाम की कि इस्लाम हर अच्छी चीज जो फायदामंद चीज होती है, जो दुनियावी एतबार से, इसका ताल्लुक अकीदे से और इबादत से ना हो, जिसका ताल्लुक अच्छाई से हो, आप दूसरे कौमों से भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठा सकते हैं, और इंसानियत के फायदे की चीजें आप पूरे इंसानियत के लिए आम रख सकते हैं। तो ये तो जनरल मालूमात थी, पहले ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप ये पूछेंगे मुझसे आकर कि फलां बीमारी का इलाज क्या है, फलां बीमारी का इलाज है, तो कुरान के अगेंस्ट जाऊंगा अगर मैं हर चीज का जवाब देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। तो आपको मैं अगर कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में मशवरा दूंगा, तो मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि हर मसला आप जो मेडिसिन का इलाज का होता है आलिम से मत पूछिए, आलिम से आप शरई मसला पूछ सकते हैं कि मैं ये इलाज करवा रहा हूं, शरीयत से अगर ये बताइए कि क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है। इस हद तक आलिम उसका डिपार्टमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। आप किसी एक्सपर्ट से जो मेडिसिन की फील्ड है आप उससे मिलिए। अलबत्ता आप अगर ये कहें कुछ रहनुमाई कुरान हदीस से मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। कलौंजी का इस्तेमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी अलहब्बतुस सौदा फीही शिफाउन मिन कुल्ली दा, कि जो कलौंजी होती है, जो काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं, वो नहीं जो बाजार में मिल रही है, तिल को भूनकर बेच रहे हैं लोग, असली कलौंजी। कहा कि इसके अंदर अक्सर, कुल का माना अगर अक्सर लिया जाए, कि इसके अंदर अक्सर बीमारियों की दवा है। यहां तक कि जदीद साइंस कहती है, अगर आप विकिपीडिया का मुताला करेंगे तो यहां तक कि जो बूढ़े लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, अगर वो लोग 3 महीने लगातार दिन में 3 मरतबा चुटकी में, जितने छोटे छोटे बारीक बारीक दाने आ जाते हैं, अगर एक चुटकी में इसको ले लेंगे और उसको खाएंगे 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम, टाइम मुकर्रर नहीं है, अगर आप उसको खा लेते हैं 3 महीने तक, बूढ़े लोग भी जिनका शुगर बिल्कुल हाई हो चुका है वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। तो आप भी सूरह फातिहा का दम क्या हुआ पानी पीजिए, हब्बतुस सौदा यानी कि कलौंजी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लेकिन आप एक्सपर्ट से जरूर मिलिएगा, मेडिसिन एक्सपर्ट से जरूर मिलिएगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। लाइन पर एक कॉलर मौजूद है, नाज़रीन इन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं हफीज पेट से सैयद अब्दुल नबी बोल रहा हूँ। हकीम पेट से सैयद अब्दुल अली साहब? नहीं, नबी साहब, हफीज पेट, न्यू हफीज पेट से जी। मैं सैयद अब्दुल नबी बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब। वो क्या है, मैं कई महीने से सोच रहा हूँ आपसे बात करूंगा, आपका कॉल टाइम पे मिलता नहीं, रात में 10 बजे के बाद भी मैं करता हूँ तो मिलता नहीं। सुनिए हाफिज साहब, रात 10 बजे हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है,
जी जी। अभी दोपहर में लाइव प्रोग्राम होता है, इसी को फिर दोबारा रिपीट किया जाता है आपकी सहूलत के लिए। अच्छी बात। तो शाम में किसी तरह की कोशिश यकीनन रायगां जाएगी। जी। चलिए माशाल्लाह, एक बात का तो अहाता हो गया कि दोपहर में लाइव होता है और शाम में रिकॉर्डेड होता है। अच्छी बात है जी, बहुत मुबारक, आपकी कॉल मिल गई है। बताइए क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा सवाल ये है जी कि जो अब हमारे भाई साहब है, उनके जिस्म पे जो है छाले वगैरह आते, धब्बे धब्बे आ जाते हैं, जी, वो क्या है, वो मुर्शिद करे ये मुर्शिद करे फिरते रहते हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा, वो कोई जिस्मानी बीमारी है, नहीं कोई करतूत बोलते हैं, कोई भानामती को ऐसा कुछ बोलते हैं। जी। तकरीबन 15 साल से हमारी बहन को छाले बोल रहे हैं आप? धब्बे धब्बे सफेद धब्बों से तो धब्बे धब्बे है। कैसे धब्बे हैं? काले सफेद? काले ऐसा कि कुछ खाल जो खराब होती है जो निकल जाती ना, जी जी उस तरीके से मैं समझाता हूँ, कोई आमिर में काम नहीं होता है, दवाओं से इलाज करो। जी। वो बोलते कि वो मुश्किल जाके 5,000 दे दे, वो मुश्किल जाके 2-4,000 दे दे। मैं साहब से पूछना चाह रहा हूँ, इसका कोई इलाज है तो बताए तो मेरी बहन अच्छी होगी तो दवाई लगेंगे। बहुत शुक्रिया साहब, आपने कॉल किया। यकीनन आपके दर्द की दवा मदनी साहब बताएंगे। भाई ने जो सवाल किया है, मदनी साहब इसका इस्लामी रोशनी में बताएं और इस बात का इजाला कर दें जो रूहानी और जिस्मानी या करतूत अमलियात, ये चीज़ों में फ़र्क करें और कहाँ रुजू हो हम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के भाई ने सवाल क्या है कि जो हालात आपके सामने भी आप पेश किए हैं, उसकी रोशनी में ये है कि ना डॉक्टर के पास जाना सही है ना गलत है, इसी तरह मुर्शिद और आमिल के पास ना जाना सही और गलत है। असल ये है कि आप जाते हैं तो शरई हुदूद में रहकर जाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और हराम दवाई खाते हैं तो हम कहेंगे गलत। इसी तरह आप किसी मुर्शिद के पास जाते हैं और शिरकिया काम, इसी तरह बिदाती काम करते हैं तो हम कहेंगे गलत। लेकिन आप चाहे डॉक्टर के पास जाते हैं या कुरान मजीद से भी, जैसा कि हमारा गुज़िश्ता टॉपिक था रूहानी बीमारियों का इलाज, क्योंकि बीमारियां दो तरह की होती है, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां। तो जिस्मानी बीमारी और रूहानी बीमारियों के लिए आप कुरान मजीद से भी इलाज कर सकते हैं और इसी तरह दवाई से भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे के गैर मुस्लिम ने ईजाद किया हो दवाइयों को, जब तक शरीयत से ना टकराए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उससे भी इलाज कर सकते हैं। असल उसूल ये है, चाहे आप जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाएं या रूहानी बीमारियों का इलाज करवाएं, हराम चीज उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और शिर्क और बिदत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजों से बचाते हुए अपने आप को अगर आप इलाज कराएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इजाजत है। जहां तक बाद औकात ऐसा होता है कि मजबूरी में आकर कुछ ऐसी दवाएं जिसके अंदर कुछ हराम एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, ये एक पॉइंट पर ध्यान में रख लीजिए। मजबूरी की सूरत में अगर आपके पास ऑल्टरनेट दवा ना हो, ऐसी कोई दवा ना हो जिसके अंदर हलाल सारी चीजें मौजूद है, अगर ऐसी दवा नहीं है और आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप हराम एलिमेंट्स मिले हुई दवा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इस मजबूरी की सूरत में सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 119 की रोशनी में मजबूरी की सूरत में हराम एलिमेंट्स से मिली हुई दवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल ये है। और इसी तरह इंशाल्लाह भाई का और एक सवाल जो इससे पहले किए हैं, वेज और नॉन वेज, यानी आमतौर पर लोग कहते हैं गोश्त खाने से नुकसान होते हैं, वो सवाल भी अभी बाकी, इंशाल्लाह हम उसके भी जवाब देंगे अभी। जी मदनी साहब शुक्रिया। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं? हेलो 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 जी, आपकी आवाज बराबर पहुंच रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं महबूब हुसैन बात करता हूँ हैदराबाद से। जी महबूब हुसैन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी, क्या सवाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को नाजिल किया था, जिनका नाम है हारूत और मारूत, ये लोगों को जादू का इल्म सिखाया करते थे। क्या इस जादू का इल्म से वो लोग बीमारियों को भी दुरुस्त करते थे? अगर ऐसी बात है तो जादूगर के पास जाने से क्या एतराज है? अच्छा बस। बहुत शुक्रिया महबूब हुसैन साहब, आपने कॉल किया। मदनी साहब, महबूब हुसैन साहब जादू से मुताल्लिक सवाल कर रहे थे और कहाँ तक ये दुरुस्त है अगर जब इसमें बताया गया है हारूत और मारूत ने जो सिखाया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है और सवाल जो हमारा डॉक्टर से निकलकर फरिश्तों तक, हारूत और मारूत तक चला जा चुका है और जदीद मसाइल से निकलकर कदीम दुनिया में हम चले गए हैं भाई के सवाल से। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपने आयत का हवाला नहीं दिया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 और 103 में हारूत और मारूत जो फरिश्ते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस्सा बयान किया है। और दूसरा ये कि आपने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है, जबकि एक कवि रिवायतों के जरिए से इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर तबरी के अंदर ये लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 103 की तफसीर में कहा कि ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का भी मुमकिन है। तो ये भी एक तहक़ीक़ ध्यान में रखिए। बहरहाल मुख्तसर ये कि वहां पर जो फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया था, बाद लोग समझते हैं कि दोनों जिन थे, जिन नहीं थे। अल्लाह ताला ने कहा मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, कि ये बाबुल में, बाबुल कहां पाया जाता है? इराक और सीरिया के दरमियान पाया जाता है। इस जगह पर दो फरिश्तों को, हारूत और मारूत नामी फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतारा था। उतारने का मकसद इलाज वहां पर नहीं था, असल जो मकसद था कि कौम के लोग जो जादू सीख रहे थे उसके जरिए से शौहर और बीवी में तफरका डाल रहे थे। उस आयत में इतना ही जिक्र है।
باقی کے تفصیلات کو اگر ماننے کے لیے دلیل چاہیے کہ وہ لوگ علاج بھی بتاتے تھے فلاں 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 فلاں، وہاں پر صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم دیکھو یہ جادو ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے تھے فلا تکفر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. تو فرشتے خود یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو علاج مت کرو. جیسے مثال طور پہ اگر ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا جیسے ہی گھر کے باہر نکلو گے تو گڑھا ہے، تو ماں کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گڑھے میں گر جاؤ، ماں کے کہنے کا مطلب ہے کہ گڑھے سے ذرا سنبھل کر چلو. تو فرشتے جو آئے تھے جادو بتانے کے لیے اس لیے نہیں آئے تھے کہ تاکہ جادو کو استعمال کیا جائے، اس لیے آئے تھے تاکہ بتائے کہ اس کے نقصانات ہیں، اس سے بچا جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. لکھتے ہیں سہیل صاحب حیدرآباد سے، خون ڈونیٹ کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس ایس ایم ایس کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا. اس کا تعلق ویسے ایک بڑا سبجیکٹ ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن، اس میں کا ایک حصہ ہے کہ خون کا ڈونیٹ کرنا کہاں تک جائز یا ناجائز ہے. تو اس کے لیے میں سارے مسائل کو ایک ساتھ کر دیتا ہوں. آرگن ٹرانسپلانٹیشن اور خون، اس کے لیے 4 اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. پہلا اصول یہ ہے کہ جو کوئی بھی ڈونیٹ کر رہا ہے یعنی دینے والا ہے، ضروری ہے کہ وہ فری میں دے، اس کے عوض پیسہ نہ لے. اور اسی طرح جو دینے والا ہے، ڈونیٹ کرنے والا ہے، ضروری ہے کہ اس کے جان کو خطرہ نہ ہو. کوئی بھی چیز دے رہے ہیں، گردے میں سے گردہ دیا جا رہا ہے، آنکھ میں سے ایک آنکھ دے دی جا رہی ہے، یا جسم میں سے کوئی ایسی چیز دی جا رہی ہے دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو. خاص طور سے خون تو ایک ایسی چیز اگر آپ دیں گے تو پھر وہ کریٹ ہو ہی جائے گا. تو جنرل آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اصول پہلا یہ ہے کہ پیسوں کی بنیاد پر اس کو بیچنا یا اس کا پیسہ لے کر کھانا حرام ہے. لیکن اگر آپ مجبور ہو گئے، کسی ایسی آپ کا بلڈ بینک ہے، پیسے دینے پر ہی آپ کو خون ملتا ہے، تو چونکہ آپ مجبور ہے لینے کے لیے آپ پیسے دے سکتے. لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے تو آپ پیسہ ہرگز مت لیجیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو کوئی بھی ڈونیٹ کر رہا ہے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے ظن غالب ہو، یعنی یقین کے قریب تک ہو. ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو فائدہ ہوگا، ایسا نہیں کہ گردہ تو یہاں سے نکالا جا رہا ہے وہاں پر فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، نتیجے میں ایک گردہ ویسٹ ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. یقین کے قریب تک ہونا چاہیے، ظن غالب ہونا چاہیے کہ اس کو فائدہ ہوگا. اور چوتھا اصول یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ایسی کوئی بھی چیز آپ نہیں دے سکتے جو مریض کے پاس اکلوتی ہے. دل اٹھا کے آپ نہیں دے سکتے. زندہ آدمی، زندہ مرنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اگر نکال کر فائدہ اٹھایا جا رہا خیر وہ الگ مسئلہ ہے، آپ دے سکتے ہیں. لیکن ایک زندہ آدمی ایک ایسی چیز دے دے گا جو اس کے پاس اکلوتی ہے، وہ بھی نہیں دے سکتا. چوتھے اصول ہی کے اندر ہے ایسی چیز نہیں دے سکتا جس سے کہ نسب میں اثر پڑے. منی نہیں دے سکتا، اپنے جسم کی منی دینا، ڈونیٹ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مسئلہ آتا ہے شرمگاہ کا اور خصیتین کا. خصیتین یعنی کہ شرمگاہ جہاں سے کہ منی کریٹ ہوتی ہے شرمگاہ میں، تو یہ خصیتین کو دینے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض ڈاکٹروں کے اندر بھی اس بارے میں اوپینین ہے کہ صرف خصیتین دینے سے بھی جب انسان دوسرے کو استعمال کرتا ہے شرمگاہ اور اسی طرح خصیتین، تو اس بات کے اندیشے ہیں، قوی اندیشے ہیں کہ خلقت پر اثرات پڑ سکتے ہیں. اس آدمی کے صفت اور اس آدمی کے خلقت کے اثرات پڑ سکتے ہیں جس سے کہ یہ شرمگاہ لی گئی ہے. تو لہذا جب یہ مسئلہ ہے، بعض ڈاکٹروں نے کہا ہے، تو لہذا شک والے مسئلوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. 4 اصول. پہلا ہے کہ ڈونیٹ پر پیسہ نہیں لینا چاہیے، اس کا نام ڈونیشن ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تیسرا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے فائدے کے قوی امکانات ہو. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ چیز اکلوتی نہ ہو اور اس کا تعلق نسب سے نہ ہو، یعنی کہ منی سے متعلق نہ ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. آپ کا ہمارا خوشگوار ساتھ یقیناً پھر سے ہوگا اس بریک. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اور اس وقفے کے بعد پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. میں تنویر بول رہا ہوں. سمیر صاحب. میں گوبند گڑھ سے بول رہا ہوں. تنویر عالم. سر میرا سوال ہے، جو میں ڈیڈی ہیں. جی بتائیے. وہ حافظی ہیں، وہ اپنا جو غریب آدمی ان کے پاس آتے ہیں وہ تعویذ بھی دیتے ہیں بنا کے. جی تو وہ اس میں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ تعویذ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہلو ہاں جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. ہاں بتائیے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ. جی میں بول رہا ہوں جی، جیسے میرے پاپا تعویذ دیتے ہیں بنا کے. ہاں اور اس کے بعد میں جو غریب آدمی آتے ہیں ان سے کوئی بخشش نہیں لیتے، کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں. جی. اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں جائز ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے یہ؟ بہتر، بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب تعویذ گندے پلیتے دینا کہاں تک درست ہے اور پیسہ بھی لیا جاتا ہے؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس کے اندر ایڈ کیا. جو پیسے بھی لیتے ہیں ایک معنی میں دھندا بن چکا ہے. تعویذ کا پہلے ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ لیجئے. کوئی بھی تاگا یا کوئی بھی کپڑا یا کوئی بھی چیز جو کتاب کی شکل میں کپڑے میں باندھ کر لٹکائی جاتی ہے، یا لوہے کی چھوٹی سی ڈبیا جس کے اندر آج کل چھوٹا چھوٹا قرآن بھی رکھا جا رہا ہے، یا پھر مڈگٹ کے نیچے لیمبو اور مرچی، یا پھر دکان کے اوپر موٹی کانٹی جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ پر تاگا. تو یہ سارے وہ قسم جس کو عربی زبان میں کہا تھا تمیمتن، یعنی ایک ایسی چیز جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ لگا لینے سے ہم بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، نقصانات سے بچ جاتے ہیں.
جبکہ اسلامی اعتبار سے بلاؤں سے محفوظ ہونا، مصیبتوں سے بچنے کا جو نظریہ ہے، ایسا وہ سارا نظریہ جو قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکرا جائے آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن مجید کی آیتوں میں اور صحیح احادیث کے ذخیرے کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں، یہ تعویذ، یہ پلیتے، ساری چیزیں آپ کو بلاؤں سے بچا سکتی ہے، ایسی کسی بھی آیت یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو آدمی تمیمہ لٹکا لیتا ہے، تعویذ لٹکا لیتا ہے، وہ شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ کہ آپ دیکھیں گے تعویذ میں بھی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک تو تعویذ جس کے اندر نمبرنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، یہ تو ٹوٹلی حرام ہے، اس کو تو سارے علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ دراصل اس کی شروعات بھی ہے یہودیوں سے، یہودی تورات کے الفاظ کو بدل کر نمبروں میں لاتے تھے، جیسا ہمارے پاس بھی ہے 786، پتہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنی توجہ دی، جبکہ قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی نمبر نہیں پایا جاتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کے دن اگر آپ کا نام کوئی آدمی پکارے، مثال طور پہ ایک کا نام اگر عبد الرحیم ہے یا عبداللہ ہے، اس کو اگر آپ ابجد حوص کے ذریعے سے ادراؤ 92 ادرائیے آپ 42 420 تو بالکل غلط بات ہے۔ تو سب سے پہلے یہودیوں نے اس کی شروعات کی، جن سے متاثر ہوئے ایرانی لوگ، مجوسی لوگ، پھر ان سے متاثر ہوئے ہندوستانی لوگ، اور ہندوستان کے اندر بھی پھر نمبرنگ کا سلسلہ چلتا ہے، اور ان سے متاثر ہو گئے سب کانٹیننٹ اور بر صغیر کے مسلمان۔ تو لہذا جو نمبرنگ اور شرکیہ کلمات والے تعویذ ہے وہ تو ٹوٹلی حرام ہے۔ البتہ بعض جگہ پر رجحان پایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعویذ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بھی اجازت کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے قرآن مجید کی بھی تعویذ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تمیمہ ہر قسم کا حرام ہے، تو وہ چیز جو کہ ذریعہ بن سکتی ہے اس سے بھی ہم کو بچ جانا چاہیے۔ اور ایک آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ جنات اور شیاطین کا خطرہ ہوتا ہے، اگر ایک آدمی قرآن مجید کی تعویذ لٹکائے گا تو ظاہر بات ہے ٹوائلٹ میں تو نہیں جائے گا، نتیجے میں تعویذ باہر رہے گی، تو اس تعویذ کے لٹکانے کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ اصل چیز تو اس کو ٹوائلٹ میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو دعائیں ہیں یہی ہمارے لیے تعویذ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکلنے تک ہماری حفاظت کرے گا، کوئی دھاگا کوئی پلیتا آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا قرآن مجید کی بھی تعویذ جو لوگ لٹکاتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے اس مریض کو کہ جو ٹوائلٹ کو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹوائلٹ میں تعویذ قرآن مجید والی تعویذ لے جائیں گے تب تو آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کر دیے، اگر آپ نہیں لے جاتے تو پھر سوال ہے کہ اندر جو شیطان اور جن ہیں آپ کی تعویذ تو باہر رکھی ہوئی۔ لہذا بہترین تعویذ تو یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے وہی دعائیں آپ کو نکلنے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدری صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نظام آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد الوکیل ہے نام میرا۔ جی عبد الوکیل صاحب۔ جی میری ایک لڑکی ہے 14 سال ہے عمر اس کی، جی تو اس کو کوئی گلا دوا ایسا ہوتا ہے، وہ بے چین ہو کے لوٹنا شروع کرتی ہے، نیچے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جی تو یہ کیفیت جو ہے فقہ کی کتابوں میں باوزلہ مرض کی بتائی گئی ہے۔ جی تو یہ شیاطین کا ہے یا مرض ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے تعلق سے استخارہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مولانا سوال ہے۔ بہت شکریہ عبد الوکیل صاحب۔ آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے آپ کے سوال سے متعلق اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس سے متعلق کیا دلائل ملتے ہیں ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو پروگرام پیش کیا تھا روحانی بیماریاں اور اس کا علاج، تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر سے آپ پتہ لگا لینے کے بعد، سائیکیٹرسٹ سے پتہ لگانے کے بعد آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکیننگ کرنے کے بعد کہ ساری باتیں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رپورٹ بالکل صاف آتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کا تعلق روحانی بیماریاں، انویزیبل کائنات سے ہونے والے حملوں کی بیماریاں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ وہی آیتیں میں آپ کو دہرا دوں گا، سب کے لیے پھر فائدہ مند ہو جائیں گی۔ یہ آیتوں کو ورد کیجیے، اس کو پڑھنے کے بعد پانی میں پھونکیے، دم کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں پانی دم کیا ہوا پانی، پھر اس کے بعد پانی پلائیے، اور سورہ فاتحہ لڑکی کو سامنے بٹھا کر باپ یعنی کہ محرم خود، اور اگر آپ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں تو محرم ساتھ میں ہو، پردے کی پابندی کی جائے، اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی جو بھی آیتیں ہیں، جو آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ کنٹینیوسلی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جادو، جن، یہ سارے چیزیں بھاگ جائیں گی۔ اور کوشش کیجیے کہ ایسے جگہ پر نہ لے جائے جہاں پر شرک ہوتا ہے، تعویذیں حرام کی تعویذیں ہوتی ہیں، بدعت ہوتا ہے، ایسی جگہ پر مت لے جائیے۔ جو کوئی بھی فوٹو مانگتا ہے یا نام، لڑکی کا نام یا بابا کا یا ایریا پتہ مانگتا ہے، یہ سارے جادوگر ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے اپنے بچوں کو مت لے جائیے۔ حوالہ نوٹ کر لیجیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 256 257، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 286، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27 26 27، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 75 سے لے کر 85 تک، 75 سے لے کر 85 تک، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 65 65 سے لے کر 75 تک، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 36 آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، سورہ طارق مکمل پڑھیے، قل کے سورے اور الم نشرح لک صدرک سورہ نمبر 94 کا مطالعہ کیجیے، اور حصن المسلم پورٹریس آف مسلم میں یعنی مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کافی علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو ہیلو ہاں جی، میں ملک حسین بول رہا ہوں گجرات سے۔
जी मलिक हसनैन बोल रहा हूँ गुजरात से। मलिक हसनैन साहब गुजरात से। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हम दरगाह पे जाके फूल या चद्दर चढ़ा सकते हैं या नहीं, फूल की चद्दर। जी, और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया मलिक हसनैन साहब आपका कि आपने हमें कॉल किया। नाजरीन, सवालात का सिलसिला बराबर जारी है और आप और हम इन सवालात के जवाबात हासिल करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वक्त के बाद इस आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। अभी भाई ने सवाल किया था और एक साहब भी लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल भी जान लेते हैं, फिर दोनों के जवाब देंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आपकी टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा। टीवी की आवाज कम करो। अच्छा, मुझे ये जानना है मदनी साहब से जी, ये जो सफेद दाग होते हैं इसका इलाज कैसे है? सफेद दाग, ये जो जिन बिन आते हैं लोगों के ऊपर और लोग इनको मौलवी के पास इलाज के लिए ले जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? सफेद दाग के इलाज के लिए मौलवी के पास नहीं, सफेद दाग का इलाज कैसे होता है? जी जी, बेहतर। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दानिश बोल रहा हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से दानिश साहब, बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने सवाल किया। दानिशमंदी की बात भी बता दें मदनी साहब, जो सफेद दाग आते हैं इसका इलाज डॉक्टर से लिया जाए या आलिम से लिया जाए, और जो दरगाहों पर फूल या चादर चढ़ाई जाती है, इससे मुताल्लिक भाई ने सवाल किया है, तो इन दोनों सवालात का जवाब अता फरमाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल मिलाकर हमारे सामने 4 सवालात हो गए हैं। एक तो वो सवाल जो वेज और नॉन वेज का है, दूसरा सवाल है मज़ारों पर फूल डालने का, तीसरा सवाल भाई ने कहा कि दाग और धब्बों का, और चौथा है उसी के अंदर के इलाज कराने का, जिसका हम तफसील से तफसील दे रहे हैं। तो जहां तक भाई ने कहा कि कब्र पर जाकर फूल डालते हैं, यकीनन जो लोग जाते हैं जाकर जज्बात से फूल डालते हैं, समझते हैं कि हम यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हम उनकी तालीमात या उनका हम अपने एक इज्जत का इजहार कर रहे हैं और इसी तरह एहतराम का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मिसाल के तौर पर खुद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप मिसाल लेंगे, बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत गुजरी है, बहुत से अच्छे अच्छे कारनामे उनके, बहुत अच्छे अच्छे और मशहूर शख्सियत है। लेकिन अगर आप खुद उनसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा खुशी किस बात पर होगी, जो भी नेक आदमी होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो यही कहेगा कि अगर आप लोग आकर फूल डालेंगे, यहां पर सजदा करेंगे, तो वो लोग कहेंगे तो हम तो इससे रोकने आए थे तुमको, तो हम तो इसलिए आए थे ताकि हम ये बताएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तुम इबादत करो, सजदे करना है, रुकू करना है, नमाज पढ़ना है तो सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पढ़े। तो अगर आप हकीकी तौर पर इन बुजुर्गान दीन को खुश करना चाहते हो तो जरूरी, तो जाहिर बात है आप उनकी तालीमात पर अमल कीजिए। गुनियतुत तालिबीन किताब अगर आप पढ़ते हैं या फतहुल गैब या फतहुल गैब किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर तौहीद की तालीम दी गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा यानी इत्तिबा सुन्नत की तालीम दी गई है। अगर कुरान और सही अहादीस को सहाबा कराम के तरीके पर हम फॉलो करें और जितनी शरीयत और जितना दीन और अकीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के जमाने में था उसमें कुछ भी हम ऐड ना करें, कोई भी नई चीज ना लाएं, इससे ये बुजुर्गान दीन खुश हो जाएंगे। अब ये जो तरीके हैं खुश करने के, फूल डालना या चादर डालना, खुद अगर आप देखेंगे तो पुराने सहाबा कराम की तालीमात से, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तालीमात से इसका जिक्र नहीं मिलता। डेजर्ट में फूल इतने थे ही नहीं। दरअसल असल ये है कि सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू हजरात पाए जाते हैं इनका मजहबी काम बगैर फूलों के होता नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जब ये मंदिर में जाते हैं तो फूल डालते हैं, शादी होती है तो फूल डालते हैं, आरती निकलती है तो फूल, तो फूलों की तवज्जो का जो मरकज है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के जमाने से ज्यादा नहीं मिलता। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम उसी पर इत्तेफा करें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के, वही हमारे लिए बेहतर है। दूसरा ये कि भाई ने कहा दाग और धब्बे के लिए, जैसा कि मैंने कहा सूरह अंबिया की आयत कोट करते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, मेडिसिन एक्सपर्ट से आप मालूमात कर सकते हैं। जहां तक यह है कि बगैर साइड इफेक्ट वाली दवा आपको मैं बताऊंगा तो कुरान मजीद का इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले सूरह फातिहा पढ़िए, पानी में फूंके और पीकर चले जाइए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। अभी आपको फायदा ही रहेगा इंशाल्लाह। आपने जो नियत नहीं की इंशाल्लाह वो भी फायदा मिल जाएगा। तीसरा आपका सवाल है कि रूहानी बीमारियों के लिए बाबाओं के पास इलाज के लिए जाते हैं, शिरकिया रास्तों पे मत जाइए, बिदअत वाले रास्ते मत जाइए। सबसे बेहतर है कि जो मैंने आपको आयतें दी हैं कुरान मजीद, जो घर में बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है, फर्स्ट एड के तौर पर पहले इससे इलाज खुद करने की कोशिश कीजिए। जब ना हो तो फिर किसी एक्सपर्ट के पास जो कुरान मजीद से जिसका अकीदा अच्छा हो और जो बिदअत में मुलव्वस ना हो, उनके पास आप जाकर इलाज करवा सकते हैं। जहां तक गोश्त का मसला है कि बाद लोगों ने कहा कि गोश्त में भी बीमारियां पाई जाती हैं खाने से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको पहले बताऊं, एक थ्योरी होता है, दूसरा फैक्ट होता है। थ्योरीज तो बहुत सारे पाए जाते हैं, ऐसी कोई फैक्ट नहीं है, मुसल्लमा हकीकत नहीं है कि गोश्त के अंदर नुकसान होते हैं, बल्कि फैक्ट और मुसल्लमा हकीकत तो यह है कि गोश्त के अंदर वो विटामिन है जो कि तरकारियों में नहीं पाए जाते, नियासिन है, इसी तरह 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं गोश्त के अंदर जो आपको तरकारियों में नहीं मिलते। इसी तरीके से गोश्त के बारे में मजहबी एतबार से भी अगर आप पढ़ेंगे अयोध्या कंडम उसका वर्ष नंबर 46,
बल्कि आप ताज्जुब करेंगे मनुस्मृति के अंदर उसका चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर गोश्त खाने का जिक्र है। हिंदू मजहबी किताबों के अंदर भी, ईसाइयों के पास भी, यहूदियों के पास भी, मुसलमानों के पास भी। लेकिन गोश्त खाना वाजिब नहीं है, बगैर गोश्त खा के भी आप जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसी चीज क्यों छोड़े जिसमें सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है। अगर ये जानवर छूट जाएंगे तो जाहिर बात है तरकारियां खा लेंगे, नतीजे में हमारी तरकारी का नुकसान हो जाएगा। बेहतर है कि जानवर को भी खाएं, तरकारी को भी खाएं, ताकि दुनिया के अंदर जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी तो फिर फैमिली प्लानिंग के मसले भी आएंगे। तो ये सारे मसाइल को देखते हुए इन रीजन की बुनियाद पर हम मुसलमान गोश्त खाते हैं कि तकलीफ देने के लिए, किसी भी आदमी को तकलीफ देने के लिए हम गोश्त नहीं खाते। चूंकि शरीयत ने हमें इजाजत दी है, इसमें से हम खाते हैं। सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 1। उम्मीद के आप सबके जवाबात मुकम्मल हुए। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा, कौन और कहाँ से? मैं पूना से बोल रही हूँ, अफरोज। जी अफरोज साहिबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत दिन के बाद कॉल आया है आपका। हाँ, आपका मिलता नहीं है ना, बहुत बिजी होता है पॉपुलर प्रोग्राम से ना आपके साथ। जी 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 जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि आजकल जो सरोगेट मदर का चलन निकला है, जी जी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में आप इस तरह। अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब ने एक सवाल का जवाब दिया था सरोगेट मदर के सिलसिले में। फिर भी आप अगर वो सवाल को नहीं मतलब सुन पाए हो या इसको बिल्कुल एलाबोरेट करके मदनी साहब बताते हैं। सरोगेट मदर, रहम मदर जो है आजकल जो है किसी औरत, उसी पर वही इससे पहले जो आपने बताया था, किसी दीगर औरत से जो है बच्चा तवल्लुद करवाना। मुख्तसर तौर पर इसका जवाब बता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने जो सवाल किया है, इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि इस्लाम में जिना हराम है। सूरह बनी इसराइल नंबर 17 आयत नंबर 32, सूरह नूर नंबर 24 आयत नंबर 1, 2। और इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। सूरह फातिर नंबर 35 आयत नंबर 5 कहा कि दूसरे बाप की तरफ निस्बत देना भी जायज नहीं है। और इस्लाम में निकाह का जो सिस्टम बताया गया उसके अंदर भी नसब की बड़ी अहमियत बताई गई है। सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24। तो लिहाजा टेस्ट ट्यूब बेबी के जो 2 जायज शक्लें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो रहमे मादर को, यानी किसी की औरत जिसका ताल्लुक वो बीवी भी नहीं है, किराए की औरत या इसी तरीके से, या किसी औरत से कहना कि रहमे मादर में आप इसको रख लो कुछ दिनों के लिए, या एक सौकन को या फिर नौकरानी को या किसी भी तरीके से अगर रहमे मादर को किराए पर लिया जाता है तो ये सारी शक्लें नाजायज है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS शामिल करते हैं। रफ़अत कर्नाटका से लिखते हैं, क्या प्लास्टिक सर्जरी इस्लाम में जायज है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें थोड़ी सी तफसील है। अभी आपने जो कहा प्लास्टिक सर्जरी कराना जायज है या नाजायज है, इसमें थोड़ी सी तफसील है। वो ये है कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 119 की रोशनी में ये है, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, के आदमी की अल्लाह ताला ने जो हुलिया दिया है इसको तब्दील करना, बदल देना जायज नहीं है। जायज असल ये है, उसूली एतबार से जायज नहीं है कि एक आदमी अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकता। मर्द औरत हो रहे हैं, औरत मर्द हो रहे हैं, या इसी तरीके से एक आदमी अपना हुलिया बदल लेता है। तो अगर एक आदमी सिर्फ फैशन के लिए या इसी तरीके से कुछ जुर्म करने के लिए, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या इसी तरीके से कोई ऐसे गैर जरूरी कामों के लिए अपने चेहरे को टोटली बदल देता है, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए से चेहरे को बदल देता है, मकसद उसका कुछ भी नहीं, तो जाहिर बात है ये नाजायज है। लेकिन मसला ये होता है कि बाद औक़ात ये होता है कि जिल्द जल गई, ऐब दूर करना है, बाद औक़ात ऐब जाहिर हो गया चेहरे पर, तो नतीजे में उस ऐब को दूर करने के लिए या कहीं पर कुछ हिस्सा जल गया, नतीजे में वहां पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए से आप इलाज करवाते हैं ऐब दूर करने के लिए, या इसी तरीके से जिस्म के अंदर ऐसा काम जिसकी वजह से इलाज करने के लिए, जिसको आप कहते हैं, अगर ये पर्पज है, ये नियत है तो जायज है। पूरा चेहरा जल चुका है एक आदमी का, अब वो चाहता है कि प्लास्टिक सर्जरी करा ले, जायज है। लेकिन एक फैशन के तौर पर एक आदमी करवाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, या एक अच्छा बनने के लिए अल्लाह ने जो उसको सूरत दी है, सीरत को अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, सूरतों को अच्छा करके क्या फायदा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो दी है वो अच्छी नजर नहीं आती तो उसको अच्छा करने, फला हीरो की तरह करना, ये जायज नहीं है। अलबत्ता ऐब दूर करने के लिए या इलाज करने के लिए कोई ऐसा इलाज करवाते हैं जो कुरान में से नहीं टकराता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इजाजत है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, करें तो क्या करें, वक्त खत्म हुआ जाता है, कोई इलाज भी पूरा नहीं हो पाता कि बस तंगी वक्त हर बीमारी को अधूरा छोड़ जाती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इससे मुताल्लिक़ अपनी आराएं और अपनी गिरां क़द्र मशवरों से हमें नवाजिएगा।